So in last lecture, we have seen what is double hashing. Then we have covered what the open addressing part, that is linear probing, quadratic probing, and double hashing. Okay. So today we are going to see the second collision resolution strategy, that is separate chaining. Okay. So what happen in separate chaining, when we have to use the number of list, and we don't know the number of fixed element we are going to insert in the in this hash table. So at that time we use what, the separate chaining concept. Okay, when we don't know, just a minute. Okay. When we don't know the number of fixed size of element we are going to insert into what the hash table, or using in hashing technique, then we use what, the concept of separate chaining. Okay. For example, if I in table size 10, suppose I want to insert particular element. Okay, and I don't know how many element I'm going to insert in this table. Suppose first element is 12, so all the procedure is similar, like as your the hash function you use in what, linear probing. The same hash function we are going to use here, but it is completely in the form of what, chaining or linked list. Means what, for example, if I want to insert element 12, then if I go with 12 mod 10, then it go to second bucket. Okay, so in second bucket, so this is what second bucket. So in second bucket I'm going to insert, I will insert element 12. Fine. So in second bucket I will insert element 12, right? So next is, suppose element 4, then 4 mod 10, it is what, fourth bucket. In fourth bucket we will insert element, in fourth bucket we will insert element 4 here. Okay, so next is element 10, 10 mod 10, 0, zeroth bucket. So in zeroth bucket, we will insert element 10, right? Next 9. So in ninth bucket, 9 mod 10. It's separate. Saili Vyavhari, please mute yourself. So next element is 9. So 9 mod 10 is what, 9 remainder. So in ninth bucket, we are going to insert the element 9 here, right? Next is 7. So 7 mod 10. So 7 mod 10 bucket is 7. So in seventh bucket, we are going to insert the element 7. Okay. Then 32. 32 mod 10. 32 mod 10. So bucket is 2. So already in 2 bucket, 12 is there. There is collision, occurrence of collision. Though there is occurrence of collision, till we can solve the problem using linked list. So here you have to add the element that we want to insert, that is what, 32. Okay, so we can add element 32 using chaining. Okay, this is called as what, using chaining. So at each element we have to create separate chain, and we have to add that particular element in particular bucket. So one bucket can have the number of element by showing what, the separate list for each bucket. Okay, next is 50, 50. So 50 is at zeroth bucket, but already there is element 10. Still we can insert, the element 50 here. Okay, so by showing what, the linked list. Okay, next is 24. So 24 is what, our fourth bucket. So in fourth bucket we can insert element 24 by showing what, the link to 4. Okay, next is 62. So 62 is what, 62 mod 10 is what, second bucket. Already there are element 12, 32. Now there is next element, that is what, 60, 62. There is next element is what, 62. And last is what, 69. Last is what, 69. So we have to insert the element 69 mod 10 is what, ninth bucket. Already there is element 9 in ninth bucket, but still we can insert the next element. So this is what all about separate chaining. The first thing
is that whenever we want to use the number of many numbers in the list, so and if we don't know how many element we are going to insert, because we know that the concept of linked list is what based on what dynamic strategy means. Dynamic strategy means runtime you can create number of list, or you can show the number of element by using link. Okay, so here using separate chaining concept, the number of element you can use. Okay, I can go as like 0 to 9. When we go for linear probing, it means what we are just going to there is fixed table size of 10 and we are only able to insert only 10 element. And here if you observe, then already we have insert 10 element, and still we can add further n number of element in this list, because we one bucket shows what the n number of list. Okay, so this is what the concept of separate chaining. It is quite simple. Already we have seen the meaning of this separate chaining at the time of what the basic practical of hashing. Is it clear? Yes. Apart from this, there is another method is what rehashing. There is another method, it is what rehashing. And what is the concept of rehashing? If our whatever hash table we are going to use, if it gets full, then insertion using open addressing with quadratic probing might fail, or it might take too much time. Okay, so basically the rehashing concept is related to when table will be full, then how we can insert the element. This is what the first thing. Or so this happen in case of normal linear probing. Okay, what happen in linear probing? Once your table get full, then we say that table is now in overflow condition. Or what happen in quadratic probing, that if we go with number of probes, if we calculate the number of probes and trying to insert the element in that particular position, then there might be the chance that element could not place at particular position after finding the number of probes equation. Okay, so this is what the problem in case of normal thing. So what we can do, we could not insert the element when table is full. So there is one solution over here. The concept is what? Rehashing. The meaning of rehashing is what? To find the solution for this is to build another table that is about twice as big. मीन्स व्हाट कि सपोज मैंने पहले 10 साइज टेबल का लिया है, ठीक है, और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि टेबल फुल होने पे आया है. सो व्हाट आई विल डू इन रीहैशिंग, मेरा जो टेबल का साइज है वो मैं क्या करूंगी, डबल के साइज में कन्वर्ट कर दूंगी. अगर 10 साइज है टेबल का तो वो आ जाएगा 20 में, राइट. तो ऐसा टेबल का साइज हमको बड़ा लेना है किस केस में? रीहैशिंग के केस में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 13, 15, 6, 24 एंड 23. ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये टेबल का साइज है 0 to 7. टेबल का साइज क्या है? 0 to 7. मतलब मेरा यहाँ पे हैश फंक्शन क्या होगा? की मॉड 7. यहाँ पे हैश फंक्शन क्या अप्लाई होगा? यहाँ पे की मॉड 7, right? So key mod, in case of key mod 7, if I want to insert this element 13, 15, 6, 24, 23, okay, तो यहाँ पे क्या होता है rehashing में? जैसे कि मेरा 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट अगर मैं जाती हूँ 13 mod 7 के लिए, if you go for 13 mod 7, तो 13 mod 7 का रिमाइंडर क्या आता है? So it is what? 6. So we place what the element 13 at what position? 6, right? Element 13 at location 6. Next element is suppose 15. So if I go for 15 mod 7, so 15 mod 7 is what? The answer is, remainder is 1. So we place 15 element at first location, right? Next is what? 6. If I go for 6 mod 7, 6 mod 7, then it is what? 0th remainder. Okay, so 6 will place at 0th position. Next is what? 24. So 20, if I go for 24 mod 7, then I got remainder 3. So 24 will get placed at third location. And next is what? 23. 23 mod 7. What will be the remainder?
2. Yes, absolutely. So if we go for 23 mod 7, remainder will be 2. So we have to place 23 at second position. Okay. So if you observe the table, then in size of 7, यहाँ पे size क्या है टेबल का? टेबल का साइज क्या है? 7 है. अभी 7 में कितने एलिमेंट हमने प्लेस कर दिए हैं? नियर अबाउट 5 एलिमेंट हमने प्लेस कर दिए हैं. ठीक है. और कितने एलिमेंट यहाँ पे और प्लेस करना बाकी है? 3 एलिमेंट प्लेस करना बाकी है. सो नियर अबाउट 5 एलिमेंट आउट ऑफ 7 हमने क्या किए यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं. राइट. 7 ओके. मॉड 7 है तो 0 to 6 का ही इंडेक्स वहां पे वर्कआउट होगा. सॉरी, 0 to 6 का ही इंडेक्स वहां पे वर्कआउट होगा बिकॉज इट इज मॉड 7. तो 0 to 6 इज व्हाट? टोटल 7 एलिमेंट. राइट. तो यहाँ पे इफ यू कैलकुलेट द थिंग, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ कि 5/7 इंटू 100, तो कितने परसेंट टेबल मेरा यहाँ पे फुल हुआ है? इट इज व्हाट? 71% टेबल यहाँ पे फुल हुआ है. एंड अज्यूम दैट after this 5 element insertion, again I want to add some more element which is definitely more than these 2 empty position. यहाँ पे जैसे कि out of 7 element यहाँ पे हमने 5 को प्लेस किया है. नियर अबाउट 2 एलिमेंट प्लेस करना बाकी है. अगर हमने इसका परसेंटेज निकाला तो इट इज व्हाट? ऑलमोस्ट 70% प्लस ये टेबल क्या हुआ है? ऑलमोस्ट फुल हुआ है. ओके. एंड अज्यूम करो कि यहाँ पे 2 स्लॉट खाली है. हमको क्या करना है? इससे कुछ ज्यादा हमको एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है. 3, 4 मोर देन 2. ओके. ऐसा कुछ करना है. सो हाउ वी कैन डू हियर? सो इट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ योर नॉर्मल लिनियर प्रोबिंग और द ओपन एड्रेसिंग कंसेप्ट. ओके. दिस इज व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ ओपन एड्रेसिंग कंसेप्ट. ऑलमोस्ट ओपन एड्रेसिंग कंसेप्ट सेपरेट चेनिंग में भी क्या हुआ है? सेपरेट चेनिंग में भी क्या हुआ है? ओवरकम हुआ है. बट इफ आई डोंट वांट टू यूज लिंक लिस्ट एंड इन ओनली द एज पर द फिक्स साइज ऑफ टेबल अगर हमको जाना है तो ये अनदर सोल्यूशन है टू ओपन एड्रेसिंग, दैट इज व्हाट? रीहैशिंग. ओके. तो यहाँ पे हमको ये कंसेप्ट देखना है. तो व्हेन टू रीहैश, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. व्हेन टू रीहैश, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. द probably when you can rehash your table, when your table is half full, means its threshold will be what? 0.5. but when it is more efficient to rehash, तो ऐसा करना जरूरी है क्या कि 50% टेबल फुल होगा तो उसको डबल साइज में कन्वर्ट कर दो? इज इट मैंडेटरी? व्हेन इट विल बी इफिशिएंसी भी एक फैक्टर होता है. यस, इट्स थ्रेशोल्ड इज 0.5. अब 50% होता है तो यू कैन एबल टू rehash your table. But is it always efficient? So the answer is, for more efficiency, when your table is almost 70% to 80% is full, then you can go for what? Rehash. Okay. Normally अगर आप 50% से ज्यादा थोड़ा जाते हो तो भी आप रिहैश कर सकते हो. बट इफिशिएंस वे से देखा जाए, इफिशिएंसी फैक्टर के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आपका टेबल 70% टू 80% फुल होता है देन यू कैन गो फॉर रिहैश. ओके. फाइन. अगेन व्हेन यू कैन रिहैश व्हेन एन इंसर्शन फेल्स. ओके. जैसे कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हमने एग्जांपल देखा था कि सब कैलकुलेट करने के बाद भी इंसर्शन करना इम्पॉसिबल था. एंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रिहैशिंग? व्हेन द टेबल गेट्स टू फुल and so we have to create a bigger table, usually 2x as large, and हैश ऑल द एटम्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल इनटू न्यू टेबल. मतलब क्या कि इसका एक्चुअल एड्रेस, इसका एक्चुअल ये क्या है कि जैसे कि टेबल 70 to 80% अगर फुल होता है तो हमको जो भी टेबल का साइज है वो डबल से क्या करना है? बढ़ाना है. 2 इंटू गिवन साइज. ओके. तो नया हैश फंक्शन हमको क्या अप्लाई करना होगा यहाँ पे? हैश ऑफ x इक्वल टू x मॉड. अभी आएगा आपका न्यू टेबल साइज. आफ्टर रीहैशिंग आपका मॉड फंक्शन में कहाँ पे चेंज आएगा? इन केस ऑफ टेबल साइज. जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? की मॉड 7 यूज कर रहे. तो अगर मेरा ये ऑलरेडी 70% ये टेबल फुल हो रहा है देन आई नीड टू रीहैश द थिंग. ओके. देन आई नीड टू रीहैश द थिंग. ओके. तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे? नया जो हैश फंक्शन है, आई हैव टू यूज दिस हैश फंक्शन लाइक x mod न्यू टेबल.
इज इट क्लियर? एक्स मॉड न्यू टेबल साइज। अभी टेबल साइज कैसे करना है? डायरेक्टली 7 इंटू 2 किया तो टेबल साइज डबल हो जाएगा क्या? न्यू टेबल साइज। सिंपली कंसेप्ट क्या था हमारा? अगर मुझे ये टेबल में आफ्टर सिंपल लीनियर प्रोबिंग या ओपन एड्रेसिंग अगर मैंने इसको प्लेस किया है की मॉड 7 से, मुझे पता चला कि ये टेबल 70 to 80% फुल होने पे आया है। नाउ आई कैन गो फॉर रीहैश। रीहैश में क्या करते हैं हम? टेबल का साइज डबल कर देते हैं। तो अगर मेरे टेबल का साइज फर्स्ट 7 है तो अभी ये हो जाएगा 7 इंटू 2, दैट इज व्हाट? 14। तो क्या मेरा न्यू टेबल साइज जो भी है वो 14 होगा? सो इट इज नॉट द केस। यहाँ पे जो भी टेबल साइज बनेगा इट इज बेस्ड ऑन योर प्राइम नंबर। क्या आना चाहिए टेबल साइज? So they have given certain criteria that whatever is your new table size, it should be with the prime number. So whether 14 is prime number, whether 14 is prime number? No, ma'am. So no. So what we have to do? So prime number should be closest to and greater than 14. तो 14 के क्लोजेस्ट और ग्रेटर में होना चाहिए ऐसा प्राइम नंबर हमको न्यू टेबल साइज के लिए वहां पे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ 17. हाँ एब्सोल्युटली। तो 14 के नियरेस्ट ग्रेटर और नियरेस्ट जो भी प्राइम नंबर आता है दैट इज व्हाट? 17। सो हियर यू हैव टू यूज न्यू टेबल साइज इज व्हाट? 17। इज इट क्लियर? So this is all about what? The rehashing. Okay, so here the basic thing is what? When to why to use rehashing concept? तो वैसे हमने देखा है फर्स्ट इसमें कि जैसे ही लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट, ओपन एड्रेसिंग का कंसेप्ट आता है तो टेबल वहां पे फुल हो जाता है, फिक्स साइज हम देते हैं, so we cannot insert. Table is in overflow condition. In quadratic probing sometimes it may difficult to insert any element or insertion may fails in quadratic probing case. Okay, so we have to go for the concept of rehashing to insert more element. When to rehash? Probably you can go for what? Threshold 0.5, that is 50%, but more efficiency we got when we use rehashing concept of when table is of 70 to 80% full. Okay, now why what we do in rehashing? We normally make double size of that table. Okay, so what affect on hash function? So it is what? Normally we go for x mod table size. Now after new table size we have to use function x mod new table size, and whether we take the number as it is with multiply by 2. So no, your the table size should be what? The prime number, it is closest or greater than prime, greater than whatever is your value. Suppose 14 is not prime number, then you have to go for closest to it or greater to it. Okay, so this is all about rehashing. Is it clear? Yes. Now the next topic is what? Extendable hashing. The next topic is extendable hashing. Just a minute. Okay, now what is extendable hashing? So when data size is too large, okay, so whenever the data size is too large, then we have to use extendable hashing. This is first thing. Second, basic, what is the basic idea of extendable hashing? Here information maintained in the form of directory structure. Okay, जो भी डेटा हम यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं extendable hashing में, it is in the form of directory structure. Here root holds some key information. यहाँ पे जो भी root बनेगा वो क्या करेगा? keys information store करेगा. leaf जो होंगे that will be in the form of specific features. Okay, इसका हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे कि क्या होता है एक्सटेंडेबल हैशिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 8 बिट बाइनरी नंबर हमने लिए हैं. ओके, 8 बिट्स बाइनरी नंबर्स हमने लिए हैं. ठीक है, अभी हमको क्या करना है? इसको इस पे हैशिंग अप्लाई करना है. 8 बिट बाइनरी नंबर पे हैशिंग अप्लाई करना है. अब तक हम क्या कर रहे थे? जैसे कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को मॉड दैट टेबल साइज किया तो हमको कुछ तो भी रिमाइंडर मिलता था. ठीक है,
तो वो रिमाइंडर विल बी कंसिडर एज व्हाट द हैश एड्रेस, और वो पोजीशन पे हम क्या करते थे, वो डेसिमल नंबर को स्टोर करते थे। यहाँ पे जैसे कि हमने दिया है 8 बिट बाइनरी नंबर, अभी मुझे क्या करना है, इस पे हैशिंग अप्लाई करना है। सो व्हाट वी विल डू, वट एवर इज माई रूट लेवल, यहाँ पे 2 लेवल में वर्कआउट होता है एक्सटेंडिबल हैशिंग, एक होता है रूट लेवल और दूसरा होता है लीफ लेवल। तो रूट लेवल जो भी है उसमें क्या होता है कि ये जो 8 बिट बाइनरी नंबर हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें से जो फर्स्ट 2 बिट है, दैट 2 बिट विल कंसिडर एज की। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो फर्स्ट रूट लेवल होगा, तो वो रूट लेवल पे आपको की स्टोर करना है। तो की किस बेसिस पे स्टोर होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 2 बिट है, तो वो फर्स्ट 2 बिट एज अ की कंसिडर होंगे, ठीक है। जो लीफ वहां पे आने वाला है, लीफ जो भी आएंगे, तो एक लीफ में आप 4 एलिमेंट्स को, ये जो 4 एलिमेंट्स है, कोई भी 4 एलिमेंट्स, इसको क्या कर सकते हैं, लीफ में स्टोर कर सकते हैं। हाउ, वी विल सी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये रूट लेवल है, फर्स्ट क्या है, ये पूरा रूट लेवल है। तो ये रूट लेवल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 बिट को की कंसिडर किया है, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये क्या है, हमारे की है, ठीक है। तो हमने ये की 4 की कंसिडर की। अभी ये 4 की के बेस पे हम क्या करेंगे, ये एक्सटेंडिबल जो भी हैशिंग कंसेप्ट है ये अप्लाई करेंगे। तो जिस 8 डिजिट नंबर का इनिशियल बिट्स अगर 0 0 से स्टार्ट होता है, तो वो चला जाएगा ये लीफ में, ये लीफ लेवल पे। ओके, जिस 8 डिजिट नंबर, जो भी 8 डिजिट बाइनरी नंबर है, उसके फर्स्ट 2 बिट 0 1 से अगर स्टार्ट होते हैं, देन इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, दिस ब्लॉक। ओके, दिस लीफ। जो 1 0 से स्टार्ट होता है वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो 1 1 से स्टार्ट होता है वो यहाँ पे चले जाएगा। सो दिस इज व्हाट लीफ लेवल एंड दिस इज व्हाट रूट लेवल। ओके, एंड व्हाट आई सेड दैट कि यहाँ पे हमने क्या बोला है, 1 लीफ कंटेन 4 एलिमेंट्स। एक लीफ में कितने मैक्स टू मैक्स एलिमेंट आने चाहिए, एक लीफ में आएंगे मैक्स टू मैक्स 4 एलिमेंट, राइट। तो 4 एलिमेंट आएंगे, बट व्हाट हैपन if I want to insert again the next element which will start with what, this 2 0। प्रॉब्लम समझ में आया, मैंने क्या बोला कि मुझे फिर से ये समझा कि ये रूट लेवल है, ये लीफ लेवल है। रूट लेवल में हमको की लेना है, हमने की 2 डिजिट नंबर के बेसिस से हमने किया है। फिर फर्स्ट जिन नंबर का जो भी नंबर है जिसका स्टार्ट 0 0 से हो रहा है, उसको हमने ये लीफ में डाल दिया। जिसका स्टार्ट 0 1 से हो रहा है उसको इसमें डाल दिया, ये बकेट में डाल दिया। जिसको 1 0 से स्टार्ट हो रहा है वो ये बकेट में डाल दिया। ओके, ये समझा। बट एक लीफ में कितने नंबर हम एलिमेंट डाल सकते हैं, एक लीफ में हम सिर्फ 4 ही एलिमेंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मुझे और ज्यादा कुछ एलिमेंट यहाँ पे पुटअप करना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे एक नया नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है। नंबर क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1, ये कुछ तो भी नंबर है, एंड आई वांट टू इंसर्ट दिस नंबर। सो बाय डिफॉल्ट इनिशियल 2 डिजिट क्या है इसके, 0 0 है। इनिशियल 2 डिजिट क्या है, 0 0 है। तो मुझे बाय डिफॉल्ट वो 0 0 ये बॉक्स में जाना चाहिए, ये लीफ की तरफ जाना चाहिए। बट ये लीफ में ऑलरेडी 4 नंबर 4 एलिमेंट ऑलरेडी है, तो 5th एलिमेंट में डाल सकती हूँ क्या, so it is not allowed. So again the extendable hash you can apply here. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और एक लीफ को एक्सटेंड करके उसका की बढ़ा देना है। क्या बोला मैंने, एक लीफ में अगर 4 ही वैल्यू जाएंगे और जो 5th वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है वो भी 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई कैन नॉट इंसर्ट 5 एलिमेंट इन 1 लीफ नोड। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, तो हमको और एक लीफ को एक्सटेंड करना है। लीफ को एक्सटेंड करते हैं तो उसका की भी ऊपर का क्या होगा, एक्सटेंड होगा। की एक्सटेंड करेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि 2 डिजिट के लिए हमने की बनाया था, तो अभी हम की बनाएंगे 3 डिजिट के लिए। किसके लिए की बनाएंगे, अभी हम 3 डिजिट के लिए।
और यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट 3 नंबर, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 3 नंबर 30 है, यहाँ पे 001 है, फर्स्ट 3 डिजिट देखना है हमको, यहाँ पे 000 है, 000 है, ठीक है। मतलब अगर 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो ये जो सेकंड वाला डिजिट है वो चला जाएगा कौन से की में, यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, जिनका स्टार्ट 3 डिजिट है, जिनके तीनों भी फर्स्ट डिजिट क्या है, 0 है। और ये कैसा होगा केस, पहले 2 0 है और एक 1 है, तो इसका फर्स्ट 3 डिजिट डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस 3। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड मोड में लाएंगे और इसको क्या करेंगे, 000 की कैसे आएंगे इनके, 000 001 010 देन 011 100 101 110 एंड 111। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो जहाँ पे प्रॉब्लम था 001 वो वाला कहाँ पे डाल दिया, 001 सेकंड लीफ की तरफ, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, राइट। और जो नया नंबर हमको डालना था दैट इज व्हाट, अगेन 001, इसके फर्स्ट 3 डिजिट चेक करो, ये जो नया नंबर हमको डालना था इट इज व्हाट 001। तो यहाँ पे हमने उसको 001 को डाला, और ये फर्स्ट ब्लॉक में जो सेकंड पोजीशन पे था जो नंबर जो 001 से स्टार्ट हो रहा था उसको भी हमने क्या किया, ये ब्लॉक में डाल दिया। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट एक्सटेंडेबल हैशिंग। Okay, so what is the observation from this concept? We can say that extendable hashing is very useful when the data size is large enough. Okay, and what are the other advantage of this extending hashing? This method results in quick access times, means we can say finding is easy as well as insertion of element is easy. Okay, then the directory, or here in case of directory we can call it as what, root size, that is what the number of significant bits may be increased as the need may be। मतलब जैसे हमको यहाँ पे एलिमेंट फुल होता है तो हम यहाँ पे रूट कितना भी बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन अवर नीड। ओके, तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, अभी 3 बिट्स में चल रहा है, अगर हमको और ज्यादा नीड है तो वी कैन कन्वर्ट इट इन व्हाट 4 बिट, राइट। 4 बिट्स में भी हम ये की को हम कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, रूट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसका और एक थोड़ा ड्रॉबैक क्या है, अगर डुप्लीकेट एंट्री आता है तो समटाइम्स दिस एल्गोरिथम में फेल। ओके, दिस इज व्हाट द थिंग। ओके, so this is all about what extendable hashing। okay, now the last concept remained from this whole unit, almost everything is covered, just one last concept is remain, that is what is skip list। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा है ये पूरे यूनिट के लिए, वो है स्किप लिस्ट। ओके, सो आई होप आपको आज जो 3 कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, सेपरेट चेनिंग, I taught you separate chaining, rehashing and extendable hashing। तो यहाँ तक में हमने पढ़ा है आज का, और जो लास्ट कंसेप्ट है skip list we will see in next lecture। ओके, समझा है आज का लेक्चर, समझा है?